मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी हुई जब हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर बोबडे बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बेंच खोलने के लिए गोवा में गए और उन्होंने कहा कि गोवा इज एन फाइन एग्जाम्पल वेयर द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज वर्किंग सिंस 1867 टिल डेट। जैसा कि बोबडे साहब ने बताया है, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार हमारे यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं, और जैसा कि ये 80% पॉपुलेशन में सक्सेसफुली काम कर रहा है, और जैसा कि गोवा के अंदर भी सक्सेसफुली काम कर रहा है 150 सालों से, तो इस 20% जो पॉपुलेशन, इसको क्यों इससे बाहर किया गया है? तो मेरी इस सरकार से, इस मोदी सरकार से नम्र निवेदन है, बल्कि इट्स ए मैटर ऑफ राइट आल्सो, टू फोर्स दिस गवर्नमेंट by way of request that they should immediately implement uniform civil code all over the country, because once that code is implemented, there will be uniform provision for the maintenance, for the marriage, for the succession, for the adoption, and any other related matters, and there will be no confusion like polygamy. If the polygamy will be there, it will be there for everybody. If the monogamy is there, it will be for everybody. And if the government brings uniform civil code along with population policy, I must say that 75% of the problem of this country will vanish altogether. ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस दिन ब दिन हो रहे हैं, पहले आपके जम्मू कश्मीर के अंदर द पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम इंक्रीज सो मच बिकॉज ऑफ द लीगल इनहिबिशन फॉर द हिंदूज टू कम एंड रिजाइड देयर, take the domicile or the citizenship of the J&K, and liberally the domicile certificate residency were being given to the Muslims and not to the Hindus. That was the reason why the Hindus came into minority and Muslim came into majority, even up to 95 to 67% in the Kashmir, and Hindus reduced from 35% to hardly 5% about there in the Kashmir. मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को और पॉपुलेशन पॉलिसी को इमीडिएटली न लेकर आए तो इस देश के जो फ्यूचर है वो बिल्कुल अंधकारमय हो जाएगा। जो हमारी मोदी की पॉलिसी है कि इसको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर लेके जाना है या इसको विश्व गुरु बनाना है, वो नहीं बन सकता। तो अगर इस देश को हमने आगे लाना है, देश को बढ़ाना है, तो देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड, when the uniform criminal code can be applicable, when the uniform civil code for 80% of the population of this country can be implemented, is already functioning very nicely. Why we have left this 20% of the population without being governed by that act? Is it their fundamental right under the Constitution of India to have a separate legislation? आज की तारीख में, और जैसा कि बोबडे साहब ने बताया है, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार हमारे यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं, और जैसा कि ये 80% पॉपुलेशन में सक्सेसफुली काम कर रहा है, और जैसा कि गोवा के अंदर भी सक्सेसफुली काम कर रहा है 150 सालों से, तो इस 20% जो पॉपुलेशन, इसको क्यों इससे बाहर किया गया है? ये अपीजमेंट पॉलिसी इनकी कब तक चलेगी सरकार की, और कब तक मेजॉरिटी
इस अपीजमेंट पॉलिसी के कारण भुगतती रहेगी और कब तक हिंदू इस देश के अंदर सेकेंड ग्रेड सिटीजन ट्रीट होता रहेगा? जब हमारी संविधान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस संविधान को ड्राफ्ट कर रही थी, उस समय भी ये डिस्प्यूट खड़ा हुआ था whether there should be a uniform civil code for everybody residing in this country or not. Majority of the members of the Constitutional Assembly, they agreed to it. But for a small group of the members who said, who had certain reservations, कि साहब it will affect the interest of minority Muslims. I do not know when this was a democratic country ruled by the vote, then how comes that point in between? Uniform civil code, when this country as a whole was a single unit, a federation of different states, rather union of different states, when there can be a uniform civil code for the Hindus, why not a uniform civil code can be there for every citizen of this country? When the constitution or the government or the parliament can bound 80% of the population of the country by bringing a uniform marriage act, adoption act and guardian act and succession acts. इस देश का बहुत ही दुर्भाग्य रहा है कि 80% जो पॉपुलेशन थी उनको तो इस कांग्रेस सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाउंड कर दिया है और जो पॉपुलेशन 10 या 11% थी और आज की समय में वो मोर देन 25% हो चुकी है, उसको किसी भी सिविल कोड से बाइंड नहीं किया। उनके अभी भी शरीयत एक्ट 1937 और उनका मुस्लिम मैरिज एक्ट, रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 आज भी चल रहे हैं और दैट इज नॉट फुली कोडिफाइड। उसके अंदर भी जो उनके रिलीजियस टैक्स है उनके ऊपर रिलाई किया जाता है, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, हिंदू अडॉप्शन एक्ट के अंदर, गार्डियन के एक्ट के अंदर, सक्सेशन एक्ट के अंदर एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को जब ये डिस्प्यूट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के अंदर, तो बजाय उस समय थोड़ी सी गलती वो कर गए जिसका नतीजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। अगर उस समय अंबेडकर जी जो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, अगर इस बात को मान करके यूनिफॉर्म सिविल कोड उस समय लगा देते तो आज हमारे देश के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो 95% प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होती। और हमारे देश में कांग्रेस ने इन 70-73 सालों में अपीजमेंट की पॉलिसी करी और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की परवाह ना करते हुए हमेशा उस माइनॉरिटी की परवाह करी। रिजल्ट ये हुआ कि वो माइनॉरिटी जो 10 या 12% थी आज डबल द अमाउंट हो गई है और जो हिंदुओं की पॉपुलेशन थी दैट इज गोइंग ऑन रिड्यूसिंग डे बाय डे। विस आप बांग्लादेश में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, अफगानिस्तान में देखिए, यूएई में देखिए, कहीं टर्की में देख लीजिएगा, जो हिंदू पॉपुलेशन वहां पर थी वो आज बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गई है बाय ड्यू टू फोर्सिबल कन्वर्जन और जीनोसाइड। जबकि हमारे देश के अंदर जो हिंदू सनातनी हैं वो बाय नेचर, बाय हेरिडिटरी कैरेक्टर, बाय इट्स एंशियंट कल्चर, वो हमेशा
टॉलरेंट रहा है, अकोमोडेट रहा है, एडजस्टिंग रहा है, कोऑपरेटिव रहा है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि 1940 के अंदर बाबा अंबेडकर जो हैं उनके द्वारा लागू नहीं किया गया है, उनकी एक छोटी सी गलती आज इस देश के लिए एक बड़ा विभत्स प्रॉब्लम बनाकर खड़ी हो गई है। और संविधान के अंदर बजाय इंप्लीमेंट करने के उन्होंने आर्टिकल 44 के अंदर इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स के तहत डाल दिया कि स्टेट जो चाहेगी, ये स्टेट की ड्यूटी है, वो यूसीसी को इंप्लीमेंट करेगी, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी स्टेट को दे दी है कि जितनी जल्दी हो सके द स्टेट विल इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन दिस कंट्री। अब 73 साल हो चुके हैं और इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने जब तक ये रही है, they never dared even to touch this Article 44. It was only at the stance of the present government that Article 370, which was also a temporary provision in the Constitution of the India, and Article 35A, which was also a temporary, not only temporary, but it was enacted illegally from the back door, that was touched by this government. They say that uniform civil code cannot be implemented in this country. I raise a question how it is being implemented in Goa right from 1867 when it was annexed with India. जब गोवा के अंदर वो 150 सालों से चला आ रहा है, तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता? ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है और कई देश ऐसे हैं वर्ल्ड के अंदर जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड बना हुआ है, तो हमारे देश में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू हो सकता? थैंक यू वेरी मच। आई एम SD Bindlesh, advocate from Delhi. If you like the content of my bite, please subscribe and share it. Thank you very much. जय भारत माता की।